I hope so. You all are fine and safe at home. Welcome to Nagesh Karaski Orchid School TV channel. Myself Atika Kudle. Children, today we are going to study Book of Wellness subject. So take your Book of Wellness book. Be ready with that and open page number 1313. Okay children. Now children, in previous session we have studied about keeping safe. Keeping safe means what? Keeping safe means you have to touch those things which are not harmful for you. The things which doesn't harm you, you have to touch only those things. For example, you can touch toys because they are soft, they won't harm you. Next is balloon. Balloon is a playing thing, it doesn't harm you, isn't it? Then wearing socks. Socks also doesn't harm you, it takes care of your feet, isn't it? So these are the things which are safe for you, they won't harm you. Beside this, we have studied the things which are harmful for us. For example, fire. If you will touch fire, your hand is supposed to get burned, isn't it? So you have to stay away from fire. Next is knife. Knife is also very harmful. You may cut your hand, you may cut your finger. Yes, in that case also you don't have to touch knife. Then next is scissor. Scissor is very, very harmful. So in this way we have studied the things which are harmful and which are safe, isn't it? We have differentiated both the things. So today we are going to study some more things about keeping safe ourselves. Let's see. Keeping safe. When someone hurts you, when someone hurts you, what you have to do? For example, say no in a loud voice. See, when you are meeting some stranger persons, the person which you don't know, they are totally unknown for you. फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में जाते हो या फिर आप घर के बाहर अकेले निकलते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुडेंट गो आउटसाइड अलोन. सब में पहले तो आपको कहीं पे भी अकेले नहीं जाना चाहिए. इट इज़ वेरी अनसेफ. बाहर अकेले निकलना सब में बड़ा अनसेफ पॉइंट है. सो ऑलवेज गो विथ एल्डर्स. द एल्डर पर्सन यू शुड गो. The elder person which are there in your house, at your home, you should go with them only. In case, few time, in case somebody is not there at your house and you want to go to play on the ground, and there you get some stranger persons. अगर आप कभी ग्राउंड पे खेलने के लिए गए हो और वहाँ पे आपसे कोई अनजान आदमी बात करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपका हाथ पकड़ रहा है, what you have to do? आप क्या करोगे? You should shout loudly, no, मुझसे बात मत करो, I don't want to talk to you. जब आप प्लेग्राउंड पे खेल रहे हो, आपके मम्मी पापा वहीं पे साइड में बैठे हुए रहते हैं और आप दूर खेल रहे हुए रहते हैं फुटबॉल, क्रिकेट. At that time you are alone, and there if some person comes and meet you, एक अनजान आदमी वहाँ पर आकर आपसे मिल रहा है और वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, वो आपका हाथ पकड़ रहा है, तो what you will do? आप क्या करोगे? आप उसको जोर से नो, मुझसे बात मत करो, tell like that to him. Okay, then what you have to do? Go to safe place. आप दौड़कर आपके मम्मी पापा के पास चले जाओ, जहाँ पे आपके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, जो बेंच पे बैठे हुए हैं, हाँ, वहाँ पे आपको जल्दी से दौड़कर पहुँचना है, भाग जाना है वहाँ से.
okay, from that stranger person. Then tell to your parents or teacher. आप पहले क्या करोगे, एक तो stranger person से बात नहीं करनी है आपको. Then next what you have to do, आप वहाँ से दौड़ कर भाग जाओगे, जोर से दौड़ोगे और आप आपके मम्मी पापा जहाँ पे है वो प्लेस पे सेफली पहुँच जाओगे. Then what you have to do, you have to tell your problem, what has happened with you just before 2-3 minutes, what has happened with you. You have to tell all that incident to your mother or your father, because parents are very safe for us. हमारे मम्मी पापा हमेशा हमारे लिए क्या है, सेफ है. वो हमारी हमेशा रक्षा करेंगे, किसी भी अनजान आदमी से हमें बचाएंगे. तो आपको क्या करना है, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, जिस आदमी ने आपसे बात करने की कोशिश की है, अनजान आदमी ने, आपको क्या करना है, उसके बारे में आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है. मम्मा मैं यहाँ पे खेल रहा था तो एक स्ट्रेंजर इंसान, एक अनजान आदमी मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था और मैं ज़ोर से वहाँ से चिल्लाकर भागकर आपके पास आ गया. फिर आप क्या करो, आपकी मम्मी को लेके जाकर उस आदमी, अगर वो आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है तो उससे मिलाओ. आपकी मम्मी उसको देखेगी, बात करेगी, वो आप उसको डराएगी, नेक्स्ट टाइम आप मेरे बच्चे के पास मत आओ, मेरे बच्चे से बात मत करो. इन दिस वे योर मदर विल सेव यू. आपको आपकी मम्मा बचा लेगी. ओके चिल्ड्रन, now let's see. Keeping safe. When someone hurts you, saying no in a loud voice. Go to a safe place. Tell your parents or teacher about it. Now understood children? What you have to do? जब भी कोई अनजान आदमी आपसे मिलता है तो आपको उससे कभी भी बात नहीं करनी चाहिए. वो अगर आपको कोई चॉकलेट वगैरह दे रहा है तो आपको कुछ लेना नहीं है उसके पास से, अनजान स्ट्रेंजर आदमी के पास से कोई चॉकलेट्स वगैरह नहीं लेना चाहिए. आपको चॉकलेट्स पसंद है मगर फिर भी आपको उसके पास से नहीं लेनी है चॉकलेट्स, बिकॉज ही इज़ टोटली स्ट्रेंजर फॉर यू. वो अनजान है आपके लिए, आप उसे जानते नहीं हो. वो ना आपका रिलेटिव्स है, ना आपका फ्रेंड है, कुछ भी नहीं है. अनजान लोगों से कोई भी चीज़ लेना सेफ होता है क्या? नो, इट्स वेरी हार्मफुल. सो आप उससे पहले बात भी मत करो. सेकेंड ऑफ ऑल, अगर वो कोई आपको चीज़ें दे रहे खाने पीने के लिए तो आपको बिल्कुल लेना नहीं है. आपको वहाँ से ज़ोर से चिल्लाना है, नो डोंट टॉक टू अस, हमारे से बात मत करो, हम आपको जानते नहीं हैं. देन व्हाट यू हैव टू डू, इमीडिएटली यू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस. जहाँ पे आप वो आदमी से बात करें उस जगह पे से आपको भागना है और सेफ जगह पे जहाँ पे आपके मम्मी पापा बैठे हुए, आपके बड़े लोग बैठे, जिनके साथ आप पार्क पे खेलने के लिए आए हो, प्लेग्राउंड पे खेलने के लिए आए हो, उनके पास जाना है आपको दौड़कर, अपने आप को बचाकर. और फिर वहाँ पर जाकर आप पूरे आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, एक आदमी आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको कुछ खाने के लिए दे रहा है, एवरीथिंग यू हैव टू टेल टू योर पेरेंट्स. फिर इमीडिएटली मम्मा क्या करेगी, मम्मा पापा जो भी आपके साथ है वहाँ पे बड़े लोग, वो क्या करेंगे, उस आदमी को देखने के लिए जाएंगे और अगर वो आपके हो सकता, कभी ऐसा भी होता है ना कि आप मम्मा पापा आप किसी को पहचानते हो और आप नहीं पहचानते, ऐसे भी हो सकता है, isn't it? सो आप आपके पेरेंट्स को वो स्ट्रेंजर आदमी से मिलाओ, कौन है पता करने दो मम्मी पापा को. ओके चिल्ड्रन, ऑलवेज योर पेरेंट्स आर सेफ फॉर यू. हमारे लिए सब में सेफ कौन है, हमारे पेरेंट्स है. हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार हमें कोई करता है क्या? नो. हमारा सब में ज़्यादा ध्यान कौन रखते हैं, हमारा सब में ज़्यादा ख्याल कौन रखते हैं, हमारे पेरेंट्स रखते हैं. हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कौन हमारे लिए सेफ है, कौन अनसेफ है, ये सारी बातें कौन ध्यान रखते हैं, हमारे पेरेंट्स. सो पेरेंट्स आर सेफ फॉर अस, दे लव अस.
पेरेंट्स हमारे से बहुत प्यार करते हैं ना? यस. सो चिल्ड्रन, what you have to do, you have to paste pictures of people you feel safe. My safe circle. My safe circle बोल तो कौन आएंगे? सब में ज्यादा हमारे लिए सेफ कौन है? कौन हमारे से सब में ज्यादा प्यार करता है? यस, करेक्ट, फादर एंड मदर. सब में ज्यादा कौन प्यार करता है हमें? मम्मी और पापा. और जब हम लोग हमारे मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो हमें किसी चीज का डर लगता है क्या? नहीं लगता है हमें किसी भी चीज का डर. और हम अपने आप को क्या फील करते हैं? बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर फील करते हैं. जब हमारे मम्मी पापा हमारे साथ होते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है? हाँ, हमारे मम्मी पापा हमारे साथ है, अभी हमें कुछ भी नहीं होगा, हम बहुत सेफ है हमारे मम्मी पापा के साथ. Isn't it? और अगर मम्मी पापा साथ में नहीं रहे तो वहां पे क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है. एग्जैक्टली. सो मम्मी एंड पापा loves you very much and they keep you safe. So what you have to do, children, you have to stick your father's photo here and your mother's photo over here. Okay, children? So this one is for your homework. What you are going to do? You are going to stick the picture of father and mother because they love you very much. They take care of you. So children, always remember you should be safe. You are safe with your father and mother. Don't go alone from any place. For example, अगर आप घर पे हैं, घर के बाहर मत जाओ अकेले. या अगर आप प्लेग्राउंड पे खेल रहे हो, जहाँ पे आपकी मम्मी पापा बैठे हुए एग्जैक्टली उनके सामने या फिर पास में खेलो आप लोग. देयर यू विल बी सेफ. अगर आप दूर जाकर खेलोगे मम्मी पापा से, then it is very dangerous and harmful for you, isn't it? So wherever your elders and parents are going, go along with them only. Don't go alone. For example, if you want chocolate, Cadbury or chips packet, whatever you want, you ask your elders to buy for you from the shop and give it to you. You don't go alone to the shops also. दुकान को भी आप लोग अकेले नहीं जाना चाहिए. मुझे चिप्स का पैकेट चाहिए, मैं जाकर लाता हूँ. No, you shouldn't go like that. Okay? Always, whenever you want to go outside, you should go with your elders or else with your parents, unless and until you are not going to go. Okay, children? So, keep yourself safe and secure. We will meet in our next session. Till then, bye.